हेलो तो मेरी हेलो गलती हेलो। है। माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। Hi, how are you? Okay, Sanjay, so what are you expecting today? What am I expecting? I'm expecting to win an award. Yeah. Okay, and which award के लिए nominated हैं आज आप? I'm nominated for the best actor in a negative lead role. Okay, इस अवार्ड की अगर बात करें या आप किरदार की अगर बात करें, आपके पहला ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा है जिस नेगेटिव किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके की फीलिंग्स आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक नेगेटिव रोल करने के बावजूद इतना प्यार मिलेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बहुत मैजिकल लगता है, बिलीव नहीं होता है बिकॉज इट्स बीन 4+ years नाउ डूइंग द सेम शो, सेम रोल, एंड एज दे से ऑडियंस इज द किंग। तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ जहाँ नॉमिनेट होता हूँ, जहाँ जहाँ अवार्ड जीतता हूँ, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस, द व्यूअर्स। उनके प्यार के बिना, उनकी नफरत, उनके प्यार, हर रिएक्शन के बिना, उनके एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग्स के बिना आई वुडंट हैव बीन हियर। थैंक यू सो मच। How are you? All good. How are you? I'm good. Actually, सबसे पहले तो अगर आज की अगर शाम की अगर बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज? So because I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? Youngest star of the year में अवार्ड मिलने वाला है। किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड? It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. Okay, Ashna, besides that, upcoming projects वगैरह के बारे में जानना चाहिए। I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or a web series, or is there any particular other reason why you are taking? No particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. But then your fans really love you watching Indian albums, right? And what kind of response are you getting from your fans, because you have taken a break for a time? So what kind of response are you receiving? People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys You know. said that you are going to come up with a web series. Can you tell us something about it? So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Hume, which is already, the poster is out, and the short film will also be released. संजय
ये बहुत स्पेशल है। दिस इज़ कोरोना योद्धा अवार्ड। मुझे लगता है कि कोविड का जो फेज सेकेंड वेव आई थी उसमें हर किसी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है। मैंने मेरी कोशिश की और इस चीज़ को लोगों ने अगर कोई भी सराहता है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि वो जहाँ भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करें। थैंक यू। यहाँ पे लेना है? अच्छा, बाप रे। हेलो। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद एक अवार्ड फंक्शन पे आया हूँ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। किस कैटेगरी में आज आपको अवार्ड? इस कैटेगरी में आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट होस्ट। Yes, yes, we are doing bikes. यहाँ पर देखिए ना, रात को मैम लोग रितिमा जी, यहाँ पर देखिए, मैम इधर भी देखिए, इधर भी हाय। ओके, सबसे पहले दिव्या, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ में क्या एक्सपेक्ट करिए अच्छा? आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मजा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गई है, काफी किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुंचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुंचा दिया। घर से बाहर निकले ही हैं, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो, मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज अबाउट इट। Okay, besides that, Divya, also we would like to know, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीजन 2 इज इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी, ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज सो क्रेजी। तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर दैट। Although you said कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मजा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर। करण जोहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इसमें अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, बूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? I really don't think so. जो भी होता है it was the part of the show and मेरे लिए वहाँ पे genuinely मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। I know and मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था एंड के तरफ से ऐसा लग रहा था हाँ। कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा है हाँ, वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, शमिता का भी सारा निकल हाँ। जाए, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो।
तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी ऑनेस्टली. अभी हो चुका है जर्नी तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट OTT से भी काफी सारे दिया कि नहीं आपको गिफ्ट क्या दिया क्या मैं हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई ट्रॉफी लेके. और क्या चाहिए उसको. बिग बॉस OTT से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं. किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है. ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी. आई नो दैट. तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज टू ऑफर. आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर. हाँ. आपने बोला कोई कंपटीशन हाँ. नहीं है. हाँ. उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर. ही इज गोइंग टू किल इट बेबी. ओके दिव्या जी के साथ में अगर जनरी पूरी जनरी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही. जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया. राइट. उभर के जो आई हाँ. उसके ऊपर आपका क्या दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट. जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर. तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज वेरी अग्रेसिव. बट दैट इज माई नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ. तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर. बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस. जी 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 बिल्कुल. कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया. मैंने अपना 100% दिया है. द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ. And that's how I've come out on Cartel, and I'm very happy. शो की बात की जाए भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. Indians are going to support, I'm sure, and there were 136 talented actors. There was no reason कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. It is giving justice to everything. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट. एंड दिस इज आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में. इट वाज आई मीन इन द शो इट वाज अमेजिंग. एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूं तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वाज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है. क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग. एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अरे फोटो बता रहे मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा. थैंक यू. Okay, so it's Iconic Gold Award. What are you expecting? Actually, we're really excited and we are expecting full energy, enthusiasm and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? We are nominated for the category, exactly the entertainment category. So yeah, it's the twin comic. Yeah. Thank you so much.
I have been nominated, and I'm really excited for that because this is important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफी बेसब्री हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा जो आगे करें. I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं. और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड से बात करें कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड. Iconic award is, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे. I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस करते तो आपके साथ करण फिर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और कोई हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा. Yeah. तो क्या कहना चाहिए अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी जोड़ी को तो ऑफर जाने I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें and I'm proud कि this जोड़ी Shaki is a hit and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope for the best. Thank you. किशन भाई थोड़ा सा पीछे लो. Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting tonight? किस चीज में nominated है इसके बारे में बता सकते. सी अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ. वैसे अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार. यू नो आई होप देयर इज यू नो ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग. अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं. सो आई विल गो एंड फाइंड आउट. और करण भी जो गाना रिलीज होने वाला है काफी लंबा इंतजार हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं. अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग. तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं. एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते हैं. तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है. तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो. एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि आपके बर्थडे के दिन रिलीज होगा. जी जी मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए. अभी किसी और के बर्थडे पे शायद आपके बर्थडे पे निकालेंगे. इसका बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे नहीं है चलो केक फिर भी खिला दो. फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको फैन को क्या कहना चाहूँगा. कौन से फैन को. आपको अच्छा फैंस को क्या कहना चाहूँगा. उनको आई लव यू कहता हूँ. थैंक यू कहता हूँ. और आपकी वजह से मैं इधर हूँ. सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम दैट इज यू गाइज. थैंक यू सो मच. एक काम करें एयरपोर्ट दे दीजिए. अरे वाह. Hello. It's iconic gold award, right? What are you expecting? Are you nominated? If you can let us know. एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती है और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स सी. होप फॉर द बेस्ट. In which category are you nominated? I'm I think in versatile actor. So yeah. All right. So you know, till now you have worked in so many web series and web platform. It has been
any upcoming project if you would like to share with us? Yeah, right now I started shooting for Ashram, so that's going on. Apart from that, my 2 films are coming. One is I have finished shooting, and now they are about to release a name. One is with the T series. It's production number 109 with Madhavan and Khushali Kumar. So it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting, and the other one is with the Z Studio. So they are about to release. Yeah. So I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी. हम पहले शूट करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, और अभी अगर हम वो नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा. ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है. तो उस वक्त ऑडियंस की किस तरह की रुचि रहेगी, किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी, तो राज अंडिके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसको. तो जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे. थैंक यू सो मच. वे लोग या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं, जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं. तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट people I work with, people whose work I admire, and of course, and then colorful evening with a lot of पता नहीं किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम, किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम. मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं काम आई थिंक यार कल ही परसों ही फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड. I'm a part of this film, Sardar Udham, and Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I'm playing, it's a special appearance, I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों अनाउंस हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon. All right. Good night, guys. Camera कितना बोले तो सामने